Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next video of our geography series. जो हमारी geography series चल रही है उसके next video को आज हम लोग करने वाले हैं and आज हम लोग Indian climate के part 2 को करने वाले हैं. The part 2 of Indian climate. In part 1 we have already discussed the hot weather season and cold weather season. हॉट वेदर सीजन और कोल्ड वेदर सीजन को हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया और पार्ट 2 में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं मानसून सीजन एंड रिट्रीटिंग मानसून. तो ये पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हॉट वेदर और कोल्ड वेदर सीजन के लिए. प्लीज डू रेफर द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो विच इज अवेलेबल इन दिस प्लेलिस्ट ओनली. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट द मानसून एंड प्लीज डू कीप मेकिंग नोट्स बनाते रहें बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू. अगर आप नोट्स अच्छे से बनाओगे तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी. ठीक है, बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ फैक्ट्स, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो थ्रू मेकिंग नोट्स एंड रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन you will get familiar towards the concepts and the facts and that will be easier for you. Now let's start the monsoon, the Indian monsoon. So it is derived from the word mausam, derived from Persian word, sorry, Arabic word derived from word mausam, which means seasons. This word mausam means seasons, and this mausam is a Arabic word. प्लीज डू कीप इन माइंड. कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ लेते हैं काफी बार कि मौसम इज ए अरेबिक वर्ड, पर्सियन वर्ड, संस्कृत वर्ड, तो ध्यान रखना इट इज ए अरेबिक वर्ड. So, what are the characteristics of Indian monsoon? There is seasonal reversal of wind characteristics. So, there is seasonal reversal of wind, seasonal reversal of wind. 90% of rainfall you will find in the four monsoon months. 90% of rainfall in 4 months. That is June to September. June, July, and August, September. In these 4 months, you will find 90% of the rainfall. The characteristics of major rainfall in Indian monsoon, you will find it is orographic rainfall. Orographic rainfall, and this rainfall only supports the deciduous vegetation of India. Deciduous vegetation. So this is about monsoon. Now there are certain theories of monsoon in India, so we will discuss those theories. So first theory is the classical theory. Classical theory. So according to this theory, as per this theory, seasonal reversal of wind that occurs as per this theory, seasonal reversal of winds, seasonal reversal of winds that occur annually are that occur annually are land bridge and sea bridge. Land bridge and sea bridge that happens at a continental scale. That happens at a continental scale. Therefore, southwest monsoon is considered as sea bridges at continental scale. Therefore, southwest monsoon is considered as sea bridge at continental scale. Sea bridge at, पहले आप लिख लो फिर मैं I will discuss the meaning. At continental scale. See what happens.
So classical theory, as per the classical theory, these monsoons are nothing but the land bridge and sea bridge at continental scale. तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या है, जब विंटर होता है, ठीक है, दिस इज द विंटर टाइम, विंटर, तो जब विंटर होता है तो अवर लैंड, दिस इज लैंड, ओके, तो लैंड गेट्स कोल्ड and a high pressure is situated in high pressure situation is created in the land. We all know that cold is associated with high pressure. पिछले वीडियो में मैंने हाई प्रेशर और लो प्रेशर से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, प्लीज रिवाइज देम। और क्या होता है, क्योंकि सी की जो वाटर की होती है स्पेसिफिक हीट इज मोर देन द लैंड, लैंड जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, बट दैट इज नॉट द कंडीशन विद द वाटर, वाटर doesn't gets cold rapidly and doesn't gets hot rapidly also. तो विंटर सीजन में क्या होता है, लैंड गेट्स रैपिडली कोल्ड बट द वाटर इज मोर हॉटर देन द लैंड, तो लो प्रेशर हमारा बन जाता है सी में, दिस इज सी, ठीक है, लो प्रेशर सी में बन जाता है, और ऐसे करके जो है ये हमारा देख सकते हो लैंड ब्रिज बह रहा है, ठीक है, दैट विंड इज कमिंग फ्रॉम द लैंड, दिस इज ड्यूरिंग समर, और विंड दिस इज ड्यूरिंग विंटर, और समर में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, लैंड मास गेट्स एक्सेसिवली हीटेड अप, लैंड में क्या हो जाता है, लो प्रेशर, दैट इज क्योंकि ये काफी वार्म रहता है, और क्योंकि सी का स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर, ये देखोगे कि आपका एज कंपेयर टू लैंड द सी इज कोल्डर, तो सी में क्या होता है, हाई प्रेशर, तो यहाँ से जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड बहता है, दैट इज फ्रॉम सी टू विंड, दिस ओनली ब्रिंग्स द मॉइस्चर रिडन क्लाउड्स व्हिच मेक रेनफॉल इन द कॉन्टिनेंट, सो दिस इज सी ब्रिज, ठीक है, तो यही जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के चेंजेस हो रहे हैं, इसी के वजह से मानसून हो रहा है, दिस वाज एज पर द क्लासिकल थ्योरी, ऑल्दो इट इज नॉट 100% करेक्ट, इट हैज सम इन्फ्लुएंस, बट क्लासिकल थ्योरी क्या है, यही मानना था कि ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है कंटिनेंटल स्केल, ठीक है, तो हमारा मानसून क्या है, दीज आर द कंसिक्वेंस ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ये भी लिख सकते हो आप, मानसून, प्लीज डू राइट, मानसून इज द consequence of differential heating of land and water, मैं मेंशन कर देता हूँ, मानसून इज consequence of differential heating of land and water, this was as per the classical theory, यही जो समर्स में है सी से आपका लैंड मास की तरफ आता है एयर, तो वो मॉइस्चर रिडन क्लाउड्स लेके आता है, रेनफॉल होती है, और विंटर में ये जो है वापस जाने लगते हैं, तो दैट इज व्हाई देयर इज नो रेनफॉल इन विंटर, वेयर एज आफ्टर समर वी फेस गुड अमाउंट ऑफ मानसून सीजन, so this was as per the classical theory, so I hope you understand this. Now let's move to the second theory, that is air mass theory. एयर मास थ्योरी, चलिए इसको समझते हैं बाय ड्रॉइंग ए मैप, this is the Indian subcontinent and this is the equator, ये इक्वेटर, अब देखो ITCZ के कॉन्सेप्ट समझो, दिस इज ITCZ, ITCZ इज ए लो प्रेशर सिस्टम, तो इसमें क्या हो रहा है, विंड्स अट्रैक्ट होते हैं, तो ऊपर से यहाँ क्या अट्रैक्ट हो रहा है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, दीज आर नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, और नीचे से जो हमारे हो रहा है दैट इज साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है, ITCZ का दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब क्या होता है कि जब समर्स में इंडिया में डायरेक्ट इंडियन लैंड मास पे डायरेक्टली सनरेज गिरती है, द सन इज डायरेक्टली फॉलिंग ऑन द इंडियन लैंड मास इन द समर्स, तो ITCZ जो है इस तरह से स्टेब्लिश हो जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, दिस इज ITCZ। तो अब एयर मासेस ITCZ की तरफ कैसे अट्रैक्ट होते हैं, जैसे हमने बताया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऐसे एक्सट्रैक्ट हो गए, और इधर से साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, दीज आर द साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, बट क्योंकि इक्वेटर है यहाँ पे, देयर इज चेंज ऑफ डायरेक्शन ड्यू टू कॉर्लियोइस फोर्स, ये जो साउथ और ईस्टर्न ट्रेड विंड्स है ये अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं, मेंशन इट, चेंज ऑफ डायरेक्शन
ड्यू टू कोरलोइस फोर्स, due to Coriolis force which change from southern to northern hemisphere. अब क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो विंड जो साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंटर कर रही है, इक्वेटर है, तो यहाँ पे कोरलोइस फोर्स की वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो यही जो साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स है, ये ऐसा हमें लगता है विद द चेंज इन डायरेक्शन दैट दे आर कमिंग फ्रॉम साउथ वेस्टर्न पार्ट, और यहीं से साउथ वेस्टर्न पार्ट से ये रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल लेटन क्लाउड्स लेके आती है और इंडियन लैंड मास में इंटर करती है। और यहाँ से क्या, यहाँ पे देखो जैसे म्यांमार है, ठीक है, फिर यहाँ से भी जाती है, फिर यहाँ हिट करके फिर ऐसे इंटर करती है, ठीक है। यहाँ पे अराकन रेंजेस है, they hit the Arakan ranges in the Myanmar and then enter the India like this. So ये इस तरह से इंडिया में मॉनसून इंटर करता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ITCZ and these two एयर मासेस, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। तो इंडिया में किसका इफेक्ट है, ये साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स का, जो कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करके साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया में इंटर करती है बाय टेकिंग द मॉइस्चर फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। और इधर में देखो क्या होता है, अराकन माउंटेन से टकरा करके फिर इंडियन कॉन्टिनेंट की तरफ मुड़ जाती है। सो दिस इज हाउ monsoon enters in India. So this was the air mass theory. I hope you understand this. ये ड्राइंग को अच्छे से बना लो और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से एंटर करती है। Now next was the jet stream theory. Jet stream theory. According to this theory, there is intrinsic link between ITCZ and there is intrinsic link between ITCZ and STJS, that is trade winds, subtropical jet stream, subtropical jet stream. So subtropical jet stream और ITCZ, that is इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में एक लिंक है जिस वजह से इंडिया में मानसून के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड दिस जेट स्ट्रीम थ्योरी वाज गिवन बाय कोटेश्वरन। अब देखो इस थ्योरी के हिसाब से क्या है, मैं इंडिया का मैप बना के समझा देता हूँ आपको। This is just a rough diagram, don't take it seriously. जस्ट एक रफ डायग्राम में बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब भी यहाँ पे हमारा, ठीक है, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम में या ट्रॉ बनाती है ऐसे, दिस इज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम मेकिंग ट्रॉ। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ट्रॉ में क्या होता है, लैंड मास पे हाई प्रेशर बनता है और क्रेस्ट में क्या होता है, लो प्रेशर बनता है। तो जब भी बिफोर मॉनसून दे मेक ट्रॉ, तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारा ITCZ है वो इंटर नहीं कर पाता, और जैसे जैसे ये क्रेस्ट बनती है फिर ऊपर चली जाती है तो ITCZ इंटर करता है। तो इसके अपवर्ड मूवमेंट से ही ITCZ इंटर करता है, क्योंकि ये हाई प्रेशर ट्रॉ बनाती है। जब क्रेस्ट बन जाती है मतलब ऊपर चली जाती है तो लो प्रेशर बनता है और ITCZ इंटर करता है। दिस इज हाउ बोथ आर लिंक्ड। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम है, दिस इज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ट्रॉ कंडीशन में आफ्टर मानसून अगर ये नहीं यहाँ से हटती है, ठीक है, इफ दे डू नॉट गेट रिमूव्ड बिफोर एंड आफ्टर मानसून, मान लीजिए बिफोर मानसून भी इस तरह से ट्रॉ सिचुएशन में है और आफ्टर मानसून भी ये ट्रॉ सिचुएशन में है, तो इससे क्या हो रहा है कि हाई प्रेशर सिचुएशंस बने रहते हैं सब कॉन्टिनेंट में। जब तक हाई प्रेशर सिचुएशंस बने रहेंगे, द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम विल नॉट एबल टू इंटर इन द इंडियन लैंड मास, और वो इंटर नहीं करेगी तो फिर जो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स है वो ठीक से इंटर नहीं कर पाती है। तो अगर ये ट्रॉ सिचुएशन में लैंड मास पे रहती है तो दैट लीड्स टू डिले इन मानसून, और अर्ली विथड्रॉल ऑफ मानसून। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ITCZ जल्दी से यहाँ पे ट्रॉ कंडीशन में आके तो जो भी मानसून विंड्स है जल्दी से विथड्रॉ कर लेते हैं, because as subtropical jet stream
doesn't subside doesn't subside and not let ITCZ move in and not let ITCZ, this is visible, move in. ये एस टी जी जो हमारे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो या तो जल्दी से ये सबसाइड नहीं करते हैं या फिर जल्दी से सबसाइडेड भी रहते हैं तो जल्दी से आ जाते हैं। तो जब भी सबसाइड नहीं करते हैं तो मानसून डिले हो जाता है और फिर अगर मानसून के बीच में ही यहाँ पे अपना ट्रॉप बना लेते हैं तो हाई प्रेशर हो जाता है, फिर मानसून का अर्ली विड्रॉ हो जाता है। सो दिस इज हाउ द सब ट्रॉपिकली जेट स्ट्रीम एंड आई टी सी जेट आर इंटरलिंक्ड। दिस वॉज द जेट स्ट्रीम थ्योरी। अब देखो मानसून के तीन सिनेरियोज होते हैं, दो सिनेरियोज तो आप इस डायग्राम से समझ के डिले कब होता है और अर्ली विड्रॉल कब होता है, जब ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का वहां रोल होता है। देखो मैं इसको अच्छे समझ रहा, थ्री सिनेरियोज रिलेटेड टू मानसून, थ्री सिनेरियोज। फर्स्ट वन is the normal scenario when everything is normal, second one is the delay, and third one is the early withdrawal of monsoon। तो आप लोग डिले और अर्ली विड्रॉल तो समझ गए हियर, क्यों डिले होता है या क्यों अर्ली विड्रॉल हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, दिस टू डायग्राम्स, क्यों एस टी जी एस दैट इज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और आई टी सी जेट में क्या रिलेशन है जिस वजह से डिले और विड्रॉल होता है, आप समझ चुके हो। अब हम उसी बात कर लेते हैं नॉर्मल की, ठीक है। वाई द मानसून सिचुएशंस, हाउ द मानसून सिचुएशन इज स्टिल नॉर्मल। कब नॉर्मल रहता है, व्हेन आई टी सी जेट एस्टेब्लिश्ड, आई टी सी जेट established in Indian landmass and subtropically jet stream migrated out of the landmass। जब ये माइग्रेट नहीं करेगी तो उसी समय डिले या विड्रॉल होता है, ठीक है, या फिर माइग्रेट करके जल्दी आ जाएगी तो उसी समय डिले या विड्रॉल होता है। लेकिन जब आईटीसी जेट अच्छे से स्टेब्लिश कर जाए और सब ट्रॉपिकली जेट स्ट्रीम अच्छे से माइग्रेट कर जाए इंडियन लैंड मास से, माइग्रेट आउट ऑफ लैंड मास, तो दैट विल क्रिएट ए नॉर्मल सिचुएशन। और सेकेंडली सेकंड फैक्टर यहाँ का होता है टाइबेटियन प्लेट्यू gets excessively heated up and creates low pressure situation। तो लो प्रेशर सिचुएशन बनाता है दैट इज राइजिंग एयर करंट्स। जैसे हमने ये आप देखोगे पिछले वीडियो में बताया किस तरह से लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ करंट राइज करती है, तो लेड टू राइजिंग एयर करंट्स। उससे क्या होगा कि एट ट्रोपोपाउच देयर विल बी इंटेंस हाई प्रेशर, क्योंकि देखो ये टिबेटियन प्लेट से लो प्रेशर राइज करेगी तो ट्रोपोपॉज में हाई प्रेशर होगा। कल मैंने समझाया हुआ था, प्लीज डू रेफर द previous video, you will understand these things more clearly। So there will be intense high pressure and there will be divergence of winds। कंटिन्यूएशन है इसी का, नॉर्मल का ही। all arms of divergence will all arms of divergence will dissipate except one arm, except one arm। this arm of divergence attracted by ITC jet। ये आर्म कौन सा है आपका, दिस आर्म इज नथिंग बट दिस इज ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। मैं डायग्राम बना के बस समझाऊंगा, पहले आप ये लिखो अच्छे से। आईटीसी जेट moves over Indian landmass, crosses the equator, moves over Indian landmass, crosses the equator and subsides near the island called Muscadine Islands, and islands called
mescaline islands. These subsidence of air currents will make high pressure situation at Mascarene Islands. That is why this is known as Mascarene High. अब यहाँ Mascarene High से क्या होगा? Divergence of wind, and this divergence facilitates crossing over of southeastern trade winds. Facilitates crossing over of southeastern trade winds. अब देखो एक डायग्राम के साथ इसको समझो. This is the Indian subcontinent. ठीक है, यहाँ पे हमारा ITCZ इस्टेब्लिश हो चुका है. This is the ITCZ established. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? टैबिथियन प्लेट्यू गेट्स हीटेड अप, और टैबिथियन प्लेट्यू में क्या सिचुएशन बनता है? लो प्रेशर. तो जब यहाँ से लो प्रेशर होता है तो देखो एयर जो है वो ऊपर की तरफ डाइवर्ज होता है. ठीक है, और यहाँ पे ट्रोपोपॉज के पास ये क्या बनाता है? हाई प्रेशर. अब यहाँ पे हाई प्रेशर जो बनता है तो काफी सारे आर्म्स जो है ये डाइवर्ज करते हैं, तो सारा आर्म डिसिपिएट हो जाता है एक्सेप्ट वन. एक आर्म जो है ये ट्रोपोपॉज में सारी चीजें हो जाती है. दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन ट्रोपोपॉज. ट्रोपोपॉज में एक आर्म जिसको हम लोग ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं. ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, दिस इज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम. ये जाता है हमारा ऐसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को क्रॉस करके ट्रोपोपॉज से यहाँ मैस्करीन आइलैंड्स में, थोड़ा ऊपर है मैस्करीन आइलैंड्स इस रीजन में. दिस मूव्स टू मैस्करीन आइलैंड्स, और यहाँ पे ये डिसिपेट होता है. यहाँ डिसिपेट होता है तो ये क्या बनाता है? हाई प्रेशर बनाता है यहाँ पे डिसिपेट, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ट्रॉ सिचुएशन में डिसिपेट होता है. ठीक है, तो ट्रॉ सिचुएशन में डिसिपेट होता है तो मैस्करीन में क्या बनाता है? हाई प्रेशर सिचुएशन. ये सब ट्रोपोपॉज में हो रही है. ठीक है, ड्यू टू दिस एक्टिविटी इन ट्रोपोपॉज हाई प्रेशर सिचुएशन इज मेंटेन्ड इन मैस्करीन है. अब यहाँ पे देखो इक्वेटर भी है हमारा मैस्करीन है के पास, तो यहाँ से क्या साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स आ रही हैं. ठीक है, विच आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ITCZ. these are साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स. अब कोरोलॉइस फोर्स और मैस्करीन हाई से जो डाइवर्ज कर रही है फिर विंड्स, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर हाई प्रेशर बन गया तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स जाएंगे, तो ये डाइवर्ज करके जो हमारे साउथ वेस्टर्न विंड मानसून विंड्स है उसको इंटेंसिफाई करते हैं. अब क्योंकि देखो यहाँ डायरेक्शन का बदल रहा है. ठीक है, ड्यू टू डायरेक्शन क्यों बदल रहा है? ड्यू टू कोरोलॉइस फोर्स एंड दिस द डाइवर्जेंस ऑफ विंड्स, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर बन गया तो विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है. तो यहाँ पे डाइवर्जेंस बना, तो इसके वजह से क्या हो रहा है? ये इंटेंसिफाई कर रही है हमारी ये साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, जो कि अब साउथ वेस्टर्न बन चुकी है, उसको इंटेंसिफाई कर रही है, जिस वजह से इंडिया में मानसून खासा हो रहा है. अब यहाँ से ये विंड्स अराकन से आकर के इधर की तरफ मुड़ेंगी और यहाँ से एंटर करेंगे, एंड दैट विल क्रिएट गुड अमाउंट ऑफ मानसून इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. सो दिस वाज अबाउट द नॉर्मल सिनेरियो कब होता है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पे हाई प्रेशर से यहाँ पे मैस्करीन हाई में जेट स्ट्रीम आई ट्रोपोपॉज में यहाँ हाई प्रेशर बना है. साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स जो है जो ITCZ की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी वो क्रोलोइस फोर्स की वजह से इधर मुड़ी, और उसको यहाँ पे हाई प्रेशर जो मैस्करीन हाई में बना था उसको इंटेंसिफाई किया कि दिस इज मैस्करीन हाई, उसको इंटेंसिफाई किया और इंटेंसिफाइड साउथ वेस्टर्न साइड से विंड्स अब इंडिया में एंटर करेगी. तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. एंड दिस वाज अबाउट Indian monsoon. So I hope you understand this thing. Now let's move to number 4, that is retreating monsoon. अब retreating monsoon क्या है, इसको भी एक डायग्राम से समझ लेते हैं. Geographic diagram of India. ठीक है, अब देखो क्या हो रही है यहाँ पे. यहाँ पे हमारा फिर से जो
साउथ STGS है, दैट इज जेट स्ट्रीम जो है, दैट इज साउथ ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो यहाँ पे देखो समझो क्या हो रहा है, ITCZ लेफ्ट इंडिया एंड STJS re-establish on Indian landmass, re-establish on, इस शॉर्ट में मैंने establish लिखा, re-establish on Indian landmass। तो यहाँ से re-establish करके विथ ड्रॉ पोजीशन, तो जब ड्रॉ पोजीशन के साथ re-establish की तो यहाँ इंडियन लैंडमास पे क्या बना, हाई प्रेशर। और जब भी हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर बनता है दैट इज क्लॉकवाइज। तो यार ध्यान रखना, जब भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर की बात हो रही है, हाई प्रेशर बन रहा है दैट इज क्लॉकवाइज। और साउदर्न हेमिस्फीयर में जब हाई प्रेशर बन रहा है तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड दैट इज जस्ट अपोजिट फॉर लो प्रेशर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और साउदर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर बनेगा तो क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखो ये हो रही है, ठीक है, हाई प्रेशर बन रही है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है विंड्स। अब देखो इससे क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हो रहा है, ऐसे विंड्स इधर किधर निकल गए। अब यहाँ से क्या हो रहा है, क्योंकि ये देखो साउथ वेस्टर्न विंड्स जो थी, जो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स है, इसको पुश भी कर रही है यहाँ पे, ठीक है। साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स गेट्स pushed by high pressure winds and starts retreating, high pressure winds and starts retreating। अब देखो क्या हो रहा है, यहीं से यहाँ पे ये पुश हो रही है, तो पुश होने से फिर यहाँ से रिट्रीट करना स्टार्ट करती है, और जब ये रिट्रीट करना स्टार्ट करती है तो इसी बीच यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून जो ये रीजन है, तमिलनाडु कर्नाटक वाला रीजन है, यहाँ पे रेनफॉल करा देती है। दैट इज व्हाट रिट्रीटिंग मानसून इज। आई होप आप समझ गए। जब ITCZ मूव आउट कर चुकी है, STJS फिर से यहाँ पे स्टेब्लिश कर चुकी है, हाई प्रेशर बना रही है, और हाई प्रेशर से यहाँ देखो विंड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से निकल रहे हैं, तो जो भी हमारा साउथ वेस्टर्न मानसूनल विंड्स है उसको पुश कर रहे हैं, और पुश की वजह से यहाँ पे रिट्रीट हो रही है, ठीक है। जब वो वापस आ रही है तो कुछ जो मॉइस्चर है यहाँ पे रिट्रीट करके बाहर निकल जा रही है। तो दिस इज व्हाट रिट्रीटिंग मानसून इज। यहाँ पे कुछ मेंशन कर लो, ड्यूरिंग दिस सीजन इंडिया एक्सपीरियंसेस a combination of high temperature, India experiences a combination of high temperature and high humidity. This combination हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी का एक सीजन जो है इंडिया एक्सपीरियंस करती है। दिस कॉम्बिनेशन रिटार्ड्स इवोपरेशन एंड कूलिंग, रिटार्ड्स evaporation and cooling effects, thereby creating a oppressive weather condition, termed as October heat, देखो क्या होता है, क्योंकि अब यहाँ से इसी टाइम में क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर तो रहता ही है, प्लस हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है। जब हाई टेम्परेचर रहे तो वी हैव फेसिंग हाई टेम्परेचर, बट ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी इवोपरेशन इज रिड्यूस्ड, और जब इवोपरेशन रिड्यूस्ड, वी ऑल नो दैट इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। इवोपरेशन जब रिड्यूस होता है तो कूलिंग ठीक से नहीं हो पाती है, और इस वजह से जो ऑपरेसिव वेदर सिचुएशन बनता है दैट इज नोन एज अक्टूबर हीट। सो दिस वाज द अबाउट इंडियन क्लाइमेट। हमने हॉट वेदर क्लाइमेट कर लिया, कोल्ड वेदर क्लाइमेट किया, फिर मानसून्स की, रिट्रीटिंग मानसून्स की, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। सो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis में से वीडियोस को बनाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क लगता है, और अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि मोर वैसे वीडियोस रेगुलरली आप सबके लिए बना पाए। एंड डू कीप मेकिंग नोट्स एंड डू कीप रिवाइजिंग योर नोट्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।